प्रकाश सिंह बादल के समय ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 78 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 2020 ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਜਿਹੜੇ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 40 ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਰੱਖਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। परम सत्कार जो सारे पंजाब दे विचों चल के पहुंची, हरियाणे दे विचों चल के पहुंची, साध संगत आओ करिए सत्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला मंच तो बुलारे ने बड़ा ही विस्तारपूर्वक पंजाब की मौजूदा स्थिति बारे दस्या। मैं एक गल तुहानूं स्पष्ट कर देनी चाहना कि ये मोर्चा किसी पार्टी का नहीं, किसी धड़े का नहीं, ये उन्हां दा मोर्चा जिहड़े पंजाब का दुख रखते हैं, चाहे वो किसान ने, मजदूर ने या व्यापारी ने, छोटे ने। ये मोर्चा साधारण किसान की, आम मनुख की अडानियां ते अवानियां नाल लड़ाई का सूचक है। मैं ज्यादा लंबा समा ना लवां, तुसीं साडे विच डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी जिहड़े एमपी रहे ने, इस हल्के तो पटियाले तो विशेष तौर पर शमूलियत की असीं एक बार फिर स्वागत करते हैं।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਾਲੂ ਖੇੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲੂ ਖੇੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਜਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको सत श्री अकाल। हम हरियाणा से आपसे कुछ सीखने के लिए आए हैं। हम पंजाब की धरती को सलाम करने आए हैं। आपको हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं। क्या आपने आज पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया है? आपने आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर ये लहर चलाने का काम किया है। पंजाब को देखकर हिंदुस्तान का एक एक किसान जाग रहा है। इसके लिए मैं आप सबको क्रांतिकारी बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ। और पंजाब की यह धरती है, पंजाब हरियाणा इकट्ठा ही था। जब यहाँ पे कंपनी राज था तब पंजाब और बंगाल से हिंदुस्तान के अंदर क्रांति उठी थी। आज इस पंजाब ने इस क्रांति का आगाज किया है और ये जो क्रांति पंजाब से उठी है, हमें विश्वास है पूर्ण रूप से कि ये क्रांति मोर्चा फतेह होगा, हिंदुस्तान का किसान जीतेगा और बीजेपी सरकार को घुटनों के बल लाने का काम हिंदुस्तान का किसान करेगा। आज ये काले कानून लेके आ रहे हैं, ऐसे कानून उन कंपनी राज को यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। अरे हमें पता है ये कंपनी राज क्या होता है। हमने 200 साल कंपनी राज को भोगा है हिंदुस्तान के अंदर, 200 साल, और 100 साल लगे थे कंपनी राज को यहाँ से समाप्त करने के लिए। हमें जो कंपनी राज से मुक्ति मिली है, ये हाथ जोड़ के, हाथ फैला के नहीं मिली है मुक्ति, हमें गर्दन कटा के मुक्ति मिली है कंपनी राज से। हम कीमत जानते हैं इस आजादी की कि हमने आजादी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। हमारी 3 पीढ़ियां खप गई थी इस आजादी के लिए। ये हमारे देश के लाखों नौजवानों ने शहादतें दी है, हमारे गुरुओं ने शहादतें दी है, हमारे देश के लाखों किसानों ने शहादतें दी है, तब जाके इस कंपनी राज से मुक्ति मिली है। आज देश का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि ये कंपनी राज जो यहाँ पे स्थापित होने जा रहा है, इस कंपनी राज के खिलाफ हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं। हमें बहुत बड़ी कीमत चुका के हमें मुक्ति मिली थी, हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम किसान कानून की बात करें, उसके विरोध में विभिन्न जत्थेबंदियां जहां लामबंद होती नजर आ रही हैं, किसान जहां लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो आज राहुल गांधी भी पंजाब में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली करने वाले। आपसे कुछ देर में उनका एक हस्ताक्षर अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। उस हस्ताक्षर अभियान के बाद वो एक पब्लिक मीटिंग जो है उसको संबोधित करेंगे और उसके बाद ट्रैक्टर मार्च जो है वो शुरू होगा। एक दिन में 20 किलोमीटर का सफर जो है वो इस ट्रैक्टर के माध्यम से राहुल गांधी
तय करने का काम करेंगे और तकरीबन 3 दिन की यात्रा के दौरान 50 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी किसानों की हक की बात करते हुए नजर आएंगे। और केवल अगर हम राहुल गांधी की उस विजिट की बात करें तो केवल वही एक धरना नहीं हो रहा। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर भी एक बड़ा रोष प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें किसान जत्थेबंदियों के साथ साथ जो गायक हैं वो लामबंद होते नजर आ रहे हैं। शंभू मोर्चा लगाया गया है शंभू बॉर्डर पर, जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर एक बड़ा मोर्चा लगा दिया गया है जो अनिश्चितकालीन समय तक चलेगा, यानी जब तक किसानों की डिमांड पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। इसकी लाइव तस्वीरें भी इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो किसान हैं वो जुटने शुरू हो चुके हैं, कलाकार जो हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कई कलाकार जो हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो इस रोष मुजाहरे का हिस्सा बनती नजर आ रही हैं। यानी सीधे तौर पर अगर बात करें तो अब किसान जो हैं वो लामबंद होते नजर आ रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, के लिए भी हम कहने के लिए आए कि आप भी हरियाणा के अंदर पहुंचिए और हरियाणा की धरती के ऊपर आइए, ताकि आपको देखकर हरियाणा का किसान के अंदर और जोश आ जाए। हमें पंजाब से बड़ी उम्मीदें हैं, पूरा देश पंजाब की तरफ देखता है, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक बड़ी यात्रा आज होती हुई नजर आ रही है और उसके अंदर तकरीबन 10,000 के आसपास जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। विभिन्न रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्जन इस करके की हुई है ताकि आम नागरिक जो हैं वो इस यात्रा से प्रभावित होते हुए नजर ना आए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से आज एक बड़ा मोर्चा होता हुआ नजर आएगा, एक बड़ी रोष रैली का आगाज होता हुआ नजर आएगा, तो उस रैली का जो केंद्र की मोदी सरकार है उस पर आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बड़ा विषय रहने वाला है। जिस तरह से अगर हम लाइव तस्वीरों की भी बात करें तो कुछ ही देर में जो सिग्नेचर कैंपेन है वो शुरू हो जाएगा। आज बात कर रहे हैं, ये बात चर्चा करते हैं, मोदी टीवी के ऊपर आके रोज बोलते हैं कि भाइयों बहनों मित्रों ये तो देश। बिल्कुल, देखिए सभी के सभी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। पंजाब के जितने भी विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं वो इस ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अन्य भी कई बड़े कांग्रेस के जो लीडर हैं वो इस ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय नेता जो हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो खुद किसानों के लिए एक हुंकार रैली लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जी, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर पंजाब के साथी जाते हैं, फसल बेच के आते हैं, और राजस्थान के लोग आते हैं, फसल बेच के जाते हैं। कोई नहीं रोकता, कहीं भी जा सकते हैं आज भी हम, लेकिन ये छोट का पुलिंदा इनका, ये देखिए चंद ही मिनटों में ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है लोकेश शुरू होता हुआ नजर आएगा, जिसमें पहले सिग्नेचर कैंपेन चलाई जाएगी। यानी 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर करवा के देश के राष्ट्रपति को भेजा जाएगा वो मेमोरेंडम, जिसमें सीधे तौर पर कहा जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो कानून पास किए हैं वो किसान विरोधी हैं, किसान उसका समर्थन नहीं करते। इसी वजह से सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है। उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग होगी और उस पब्लिक मीटिंग के बाद एक बड़ी ट्रैक्टर रोष रैली जो है वो पंजाब की विभिन्न सड़कों पर निकलती हुई नजर आएगी, जिसमें सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज समूची कांग्रेस पार्टी जो है वो हल्ला बोल करती हुई नजर आएगी और किसानों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी होती हुई नजर आएगी। जी, लागू किया, ये तुम्हारे हाथों से ये पेड़ हम फड़वाने का मादा भी रखते हैं और ये पेड़ हम फड़वा के रहेंगे। हमने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी तोड़ने का काम किया है। ये तुम्हारे काले कानून क्या है, राष्ट्रपति से शासन लागू करके, ये राष्ट्रपति से देखिए सीधे तौर पर अगर बताया जा रहा है तो तकरीबन 5,000 के आसपास ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं इस रैली में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर विभिन्न सड़कों की बात करें तो अंदाजा लगाया जा सकता है 500 से लेकर 1,000 ट्रैक्टर जो हैं वो इस रैली में होंगे। तभी थोड़ा थोड़ा समय रखा गया, तकरीबन एक दिन में 20 किलोमीटर का समय जो है वो
वो निर्धारित किया गया कि 20 किलोमीटर की अवधि जो है ये ट्रैक्टर रैली तय करती हुई नजर आएगी, जिसमें आज में ही 2 बड़ी पब्लिक मीटिंग जो है वो राहुल गांधी करते नजर आएंगे। कल भी इसी तरह से सुबह 11 बजे ये ट्रैक्टर मार्च शुरू हो जाएगा, उस दौरान भी पब्लिक मीटिंग होंगी और परसों हरियाणा बॉर्डर पर जाकर एक बड़ा प्रदर्शन होगा और उसके बाद राहुल गांधी का काफिला जो है वो ट्रैक्टरों समेत हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जी सुनीता दुग्गल है, गांव के अंदर प्रोग्राम रखे, कहा मैं किसानों को जाके समझाऊंगी कि आपके हक के हैं। किसान बोले आओ कोई बात नहीं समझाओ, काले झंडे लेके खड़े हो गए, नारे किए और उसको भागना पड़ा, सिरसा के सारा प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। हमने फैसला ले लिया है कि किसी भी राजनेता को, कोई भी पार्टी का आदमी जो है इन काले कानूनों के साथ खड़ा है उसके गांव के बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही पिछले काफी समय से जिस तरह से राजनीति से नदारद चल रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के साथ हुंकार भरने का काम पिछले दिनों ही कर दिया था। किसानों के साथ मार्च पर निकल आए थे और आज भी संभावना जताई जा रही है कि जब राष्ट्रीय जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। जी बहुत सी चीजें हम सीखने के लिए आए हैं कि पंजाब के अंदर जो आंदोलन चल रहा है और एक ऐसा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, हम आपको देख कर सीख रहे हैं और आपको देख के हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन आज खड़ा हो गया है, क्योंकि पंजाब की अंदर बॉर्डर लगती है हरियाणा की और हरियाणा के अंदर आप लोगों के इस लड़ाई का, इस संघर्ष का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। आपसे प्रेरित होकर हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। 6 तारीख को आप वहां पे देखना, हजारों की संख्या के अंदर हरियाणा के कोने कोने से लोग वहां पे आएंगे और पूरे राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन वहां होगा और हरियाणा का आंदोलन दुष्यंत चौटाला की कोठी के आगे चलाएंगे कि या तो इस्तीफा देके जनता के साथ बैठ जा, वरना भाई ना तुझे घर से निकलने देंगे, हम यहीं सड़क पे बैठेंगे, ना हम घर से गया से हम जाएंगे। जब तक ये कानून नहीं बदले जाते, इनको वापस नहीं ले लेते तीनों कानूनों को, तब तक ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना इनको चैन से बैठने देंगे। यही संकल्प हमने लिया है, आप लोगों से हमने प्रेरणा लेने के लिए आए हैं और हमें उम्मीद है कि पंजाब के किसानों ने जो ये पहल की है, आप हमें नाउम्मीद नहीं होने देंगे। आप देश के किसानों की जो आपकी तरफ नजर है, आप पूरे देश के आंदोलन को मंदा नहीं करने देंगे, इस आंदोलन को आप कमजोर नहीं करने देंगे, इस आंदोलन को आप जीत तक लेके जाएंगे, आप इस मोर्चे को फतेह करेंगे। हम आपके साथ हैं और सब मिलकर दिल्ली को घेरने का काम करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान का किसान दिल्ली की तरफ कूच करने का काम करेंगे। आप लोगों ने हमें यहाँ पे टाइम दिया बोलने का, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच के अंदर जो कलाकार साथी है, इनका भी आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जैसे इन लोगों ने एक वीडियो डाली और कहा 6 तारीख को हम सिरसा के अंदर आएंगे, तो सिरसा के अंदर एक और अलग सी लहर पड़ी, चल पड़ी है, तो इसलिए मैं इन कलाकार साथ बिल्कुल देखिए कुछ ही देर के अंदर ये प्रदर्शन जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है वो पंजाब के मोगा में पहुंचकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम करेंगे। बड़े कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि समर्थन जो है उनको इस ट्रैक्टर रैली में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार पंजाब के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून के विरोध में प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं, तो ये प्रदर्शन भी उसी संदर्भ में जाता हुआ नजर आएगा, जिसमें कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा, दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि किसानों के मन मुताबिक इन कानूनों के अंदर संशोधन किया जाए, ताकि ये किसान जो है वो भी जो ये कानून है इनका या तो समर्थन करे या फिर इनको पूर्ण रूप से रद्द किया जाए। और दोबारा से अगर इस तरह के कोई कानून लागू करने हैं तो फिर सीधे तौर पर किसानों से विचार विमर्श किया जाए, उसके बाद ही इस तरह के कानूनों को मंजूरी दी जाए। जी और आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करते हुए और 6 तारीख को यहाँ से जितने भी साथी है उन सबको हरियाणा के अंदर आने का निमंत्रण भी हम देना चाहते हैं कि आप लोग हरियाणा 6 तारीख के आंदोलन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आए और ये जो कलाकार साथी है वहाँ पे पहुंचे ताकि ये पूरा आंदोलन बड़ा चले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
बहुत धन्यवाद मेरे वीर प्रहलाद कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है, हरियाणे तो विशेष रूप दे विच चल के आए, बहुत कट कट के आ रही है। और मेरी सुनो, मैं शंभू में हूँ, शंभू बॉर्डर पे हूँ, मैं मोगा में नहीं हूँ। जी आया कहने आ हेलो, मेरा बड़ा वीर आर्टिस्ट हॉबी धालीवाल शंभू बॉर्डर में हूँ, मैं मोगा में नहीं हूँ। जी आया कहने आ मैं आ नौजवानी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शंभू बॉर्डर पे भी ले लो ना कि शंभू बॉर्डर के क्या हालात हैं। कि सामने जरा है जिथे भी जगह मिलती है मेरा वीर जिथे खड़े हो ऐसी बैठन की कृपालता करो। थोड़े चरणों च बेनती आ, थोड़े अगे साडा सिर झुकना, थोड़ी ताकत अगे असीं नतमस्तक होने आ बार-बार। मैं बेनती करा, बहुत लंबी लिस्ट बुलारियां दी है साडे विच। सिख चिंतक, समाजिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक पार्टीवादी तो ऊपर उठ के आए ने, धड़े ऊपर उठ के आए ने। किसी का नाम भी रह जाता, साडे वीर अजयपाल सिंह जी बराड़, उन्होंने भी असीं जी आए कहने आ। बहुत जिहड़ी हैगी आ नाल उन्होंने मेहनत की है सारे प्रोग्राम नूं नेपरे चाढ़न दे लई। मैं हुण बेनती करां, साडा राजपुरे तो जत्थे दे जिहड़े मुखी ने सरदार बलजिंदर सिंह जी परवाना, हुण बुलारियां दे चरनां विच बेनती आ भी जिन्ना समां मंच तो अनाउंस कीता जावे और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ अपने वचन साझे करनगे। सरकारे हो जा तगड़ी, चावी रगड़ी, शामत तेरी आऊगी, मंडिया चो गल है निकली, दिल्ली तक जाऊगी, खेतों चो गल है निकली, दिल्ली तक जाऊगी। सब तो पहला सारे भैन भरावां नूं गज वज के प्यार बहुत बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का ना। देखो मोर्चा किसानी का मेरे को कठारे पासे में शुरू करा लियो। जे मैं कठारे पासे हो गया टाइम 5 मिनट में, मैं 5 घंटे उठन नहीं देना, थानू हिलन भी नहीं देना। मैं फतेह तो कथा कर लग जानी है, 5 घंटे बोलांगा। फतेह क्यों बुलानी है, गुरु गोबिंद सिंह ने क्यों बुलाई दी, पहला क्यों बुलाई दी है, जो पहला बुलांदा की फायदा, बाद बुलांदा की फायदा, गज के बुलावे की फायदा, हौली बुलावे की फायदा। मैं 5 घंटे बोलूंगा, हिलन थानू भी नहीं देना। जे तां 5 घंटे चाहते हो मैं लगा रहा, ये तो फतेह ना बुलाओ। जे चाहते हो 5 घंटे मतलब मैं 5 मिनट बोला, फिर फतेह बुला लो। वाहिगुरू जी का धालीवाल साहब देखो पता होंगे भी ये 5 घंटे कथा नहीं सुननी चाहते, अभी ये करता इन्होंने। तो गुरु प्यारिओ, अज का जिहड़ा संघर्ष है, मैं पहला मीडिया वाले वीरां नूं बेनती कर देवां, जो सवाल करते हैं ना भी मैनू 4 मीडिया ने बाइक लाई तो धरना लगा जी, धरने दे आए ना। ये शब्द नूं पहला बदलो, ये धरना नहीं है, ये मोर्चा है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार बड़े प्रदर्शन जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी जिस तरह से मैं आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस वक्त शंभू बैरियर में जिस तरह से एक बड़ा मोर्चा लगा हुआ है, ये बड़े मोर्चे की मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो यहाँ पर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। और इसी तरह का माहौल जो है वो मोगा में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर राहुल गांधी के साथ जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो लामबंद होती नजर आ रही हैं। और एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, ताकि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जाए कि जो फैसला उन्होंने किया है, यानी जो कानून उन्होंने पास किया उसको तुरंत रद्द किया जाए, या फिर सीधे तौर पर किसान जो हैं उनकी मांग के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाए। तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आज पंजाब के हर कोने में देखने को मिल रही है, जहां पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लामबंद होती नजर आ रही हैं, पक्के मोर्चे लगाए जा रहे हैं,
ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जाए। रेलवे रोकी गई हैं, इसके अलावा सड़कें रोकी जा रही हैं, इसके अलावा सड़कों से रातां कटनियां राजनीति है। सानू ओही राजनीति वाले लोग चाहिए ने 5 साल बाद हाथ जोड़ने वाले राजनीतिक बंदे नहीं चाहिए, सानू इदां दे चाहिए ने। उस तो बाद बिल्कुल देखिए लोकेश, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का उस दिशा में जाता भी नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक है और जिस तरह से किसानों ने मोर्चा खोल दिया है तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो लीडर हैं वो किसानों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर चलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे एक फायदा कांग्रेस का ये है कि पिछले 4 साल का कांग्रेस का जो कार्यकाल है उस दौरान जो मुद्दे उठकर सामने आए हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं नजरअंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर अब की बात करें तो जिस तरह से लगातार किसानों के हक की बात यहां कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये जो कानून है इनको पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर चाहे कानूनी मार्ग प्रशस्त करने की बात की जा रही है, चाहे ये बात की जा रही है कि विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव बुलाया जाएगा, यानी कई तरह की बातें यहां पर जो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री सहित। लेकिन केंद्र पर इस तरह के मोर्चों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह की रैलियों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, किसान यूनियन जिंदाबाद, फिर दोबारा बोलो, भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मेरा भारत शब्द ना कोई वैर नहीं, मेरी गल सुनो ध्यान नाल। हिंदुस्तान शब्द ना मेरा बड़ा वैर है, कट्टर वैरी है मैं हिंदुस्तान शब्द का, पर भारत शब्द ना कोई वैर नहीं। भारत संविधान च लिखिया होया बनना चाहिए। पर मैनू एक गल का जवाब दिओ जे भी जदों पंजाब तो बाहर, हाँ हरियाणा ये तो साडा मतलब कह दिए भी नानका दारका वाला काम है, हरियाणा साडा अपना है, इनू असीं पंजाब तो वख करके नहीं वेच सकते ते हरियाणे वाले पंजाब नूं अपने तो वख करके नहीं वेच सकते। साडे रिवाज संस्कार इक्को वर्गे ने। पर जिहड़ी मैं गल कर लगा भी जदों पंजाब तो बाहर हर आउंदे ने, पंजाबी जांदा है, राशन इकट्ठा करदा है, कपड़े लेके जांदा है, किते भुख बड़ी आ जाए कार बह पंजाबी जांदा है, किते कोई लड़ाई हो जाए धीआं भैणां बलात्कार हो पंजाबी जावे, पंजाबी आवाज उठावे। पर जब पंजाब च हड़ आवे, पंजाब च कोई दर्द होवे, फिर भारत कित्थे सौ जांदा है, फिर भारत किहड़ी जगह सौ जांदा है। साडे हड़ आए, सानू लोड़ नहीं किसी को मंगण दी, ना असीं मंगते नहीं। सानू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने पातशाह बनाया, असीं बादशाह नहीं, असीं पातशाह हाँ, असीं राजे हाँ, असीं भिखारी नहीं, सानू लोड़ नहीं। पर दुख हुंदा इस गल दा भी जदों पंजाब ते हड़ आए या कोई दर्द आए, कोई इकट्ठा नहीं हुंदा, कोई हां दा ना। इस करके मेरा मैं हित ठोक के कहांगा, मैं भी कहंदा भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मैं कहांगा पंजाब किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, पंजाब किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, पंजाब किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मेरा ये नारा है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के भी बोल चेते रखियो, चूकर हस हमा हीलते दरगुजश हरार अस्त गुरजन द शमशीर दस। एक गल कह के मैं समाप्ति करांगा गुरु प्यारे भी असी उस पिता दे पुत्र हाँ भी जेड़ा सिर कदे चुकिया नहीं। ध्यान दिओ जे, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदा वंद बख्शिंद ऐश अर्श। जदों गुरु गोबिंद सिंह ने कर गया कि मैं समाप्ति फतेह बुला देनी है, जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ना सिर ते ताज, ना हाथ से बाज, ना पैरों से जोड़ा, ना थले घोड़ा, सिंह जी अख के क्या सी, वंगा के क्या सी, ए गोबिंद सिंह अज मैं तेरा सिर झुका दिता है। ध्यान दे, सारा परिवार उजड़ गया, खेनू खेनू हो गया। ते रंग जे गुरु गोबिंद सिंह कहते तेन लगता है भी तू मेरा सिर झुकाता, कहता हाँ मैं तेरा सिर झुकाता। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फौज, खुदा बंद बख्शिंद ऐश अर्श। कहते आ गया तेनू बादशाही मिली है बाबा दे कोलों, मैनू बादशाही मिली है गुरु नानक दे कोलों। तेरे वर्गे 100 तेरे वर्गे
आ जाओ और मेरा सिर नहीं झुका सकते ते आ औलाद तू गोबिंद सिंह दी बेटी आ मोदी वर्गे मोदी वर्गे हजारों मोदी आ जाओ पंजाबियों का सिर नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा। उन्हें को बेनती करना कि मेरा जाते था साढ़े लाख मैं मोर्चे वाले वीरों को कहांगा राजपुरे वाले खास करके राजपुरे वाले इज्जत का सवाल है पिंडा को कढ़ने हो बंदे जे मोर्चे में फूल ना पे लाभता राजपुरे में पैनिया ने लाभता राजपुरे में पैनिया ने लाभता जो बच गए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई बजिंदर सिंह जी परवाना जी का मैं जी आया कहना सरदार सुखप्रीत सिंह जी उदो के जो सिख विद्वान ने उन्होंने नाल पहुंचे ने असी दिल दीआं गहराइयां तो जी आया कहने। इस तो बाद मैं बेनती करा इस हल्के के साबका MP ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਫ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ MP ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਵਾਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਮਨਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ। बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्गो नौजवान दोस्तों ते पंजाब के कोने-कोने चो आए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों अज पंजाब के कई इकट्ठ हो रहे हैं। मैं खास तौर से तिन्ना इकट्ठा का मुकाबला करना चाहना। एक इकट्ठ निहाले वाले तो राहुल गांधी ते कैप्टन सरकार दे वल्लों कीता जा रहा। दूजा इकट्ठ पंजाब के किसानों की दुश्मन पंजाब के दुश्मनों वालों एक कट का निहालिया वाला है मोगे वाला है ते दूजा कट पंजाब के दुश्मनों वालों पठानकोट किया जा रहा भाजपा वालों ते तीजा कट साडा पंजाब प्रस्तां दा पंजाब के जो लोग ने जो आम लोग ने उन्होंने हितां दी रखवाली करन वालियां दा पंजाब दे हितां दी रखवाली करन वालियां दा ये साडा पंजाब प्रस्तां दा पंजाब दे वारसां दा कट हैगा है। मैं तुहानूं सब नूं इस मौके ते अज इन्नी वड्डी इतलाह इकट्ठे होण दी बधाई देना है। दोस्तों बड़े गंभीर समय चो आपां लंघ रहे हैं। साडा पंजाब पंज दरियावां दी धरती पानियां नाल हरियाली नाल सरशार पंजाब गुरु नानक गुरु गोबिंद बाबा फरीद भगत सराबे गदरी बाबिया की धरती पंजाब सारे हिंदुस्तान दा जज्बात वाली धरती पंजाब योधिया की धरती पंजाब दुनिया भर दी महानतम कौमां चों एक कौम पंजाब जिहड़ी किसी वेले हर पासे की ढाक सी जिस्मानी सेहत की आर्थिक सेहत की अज वो पंजाब तबाही के कंढे खड़ा है। ये पंजाब जिथे अज बुझा दिता गया जिथे अज खूच रसातल सुट दिता गया है इस करके नहीं किया कि पंजाबी मेहनती कर सके पंजाबी उद्यमी कर सके पंजाब ने मेहनत घट की है। अज तक पंजाबियों ने हर समय कुश्ता खेता खप गई अपने आप को नेता पुरुषता की सेवा में महान
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਮ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो जी चलो चलो ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਏਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਏਕਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਲਿਮਟ ਭਰਨ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਆ 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਆ ਡਕਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ, ਡਕਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ।
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾ ਬੋਲ ਪਾਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਲਓ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆ ਸਿਰਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਭਾਲਿਓ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਗਾਰੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀਕ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਉਹ, ਹਨਾ? ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਥ ਲਈਏ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
खुद इस धरने का हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं ते इत्थे ਜਿਹੜੇ भी किसान जथेबंदियां आईਆਂ उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक धरना करना है, रोड जाम करके आवाजाही जिहड़ी है उसनूं फिलहाल बंद नहीं करना, क्योंकि अगर इहो जी कार्रवाई होंदी है तो फिर प्रशासन जिहड़ा वो भी सख्त हो सकता है। इस करके फिलहाल आ जिहड़ियां लाइव तस्वीरां मैं दिखा रहा शंभू मोर्चे दीयां लाइव तस्वीरां ने जिथे पक्का मोर्चा लगता होया नज़र आ रहा है, और इस मोर्चे दीयां लाइव तस्वीरां मैं तुहानूं दिखा रहा अपने चैनल राही तुसीं लाइव देख रहे हो। आ लाइव तस्वीरां चल रही ने इस वक्त जिहदे विच सीधे तौर ते फिलहाल आ मोर्चे नूं इत्थों दूजे पासे जिथे पंडाल लाया गया उत्थे लैके जाया जा रहा है, यानी जिहड़ी सड़क ब्लॉक की गई सी उसनूं हुण खुलवाउण दा सिलसिला जिहड़ा वो शुरू हो चुका है। नैशनल हाईवे जिहड़ा वो ब्लॉक कर दिता गया सी, लेकिन हुण आ नैशनल हाईवे नूं खुलवाया जा रहा है ताकि आम आवाजाही जिहड़ी है वो बंद होंदी हुई नज़र ना आए। सीधे तौर ते दीप सिद्धू जिहड़े ने वो खुद इस धरने का हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं। एक वड्डा रोष मुजाहरा जिहड़ा वो हुण किसान कानूनां नूं लैके शंभू बैरीयर की गल करिए, पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां की गल करिए, उत्थे होंदा होया नज़र आ रहा है, जिहदे विच सीधे तौर ते दीप सिद्धू ने आग्रह किया आ किसान जथेबंदियां नूं कि रास्ता जिहड़ा वो बंद ना किया जाए, नैशनल हाईवे नूं ब्लॉक ना किया जाए, क्योंकि अगर नैशनल हाईवे ब्लॉक होंदा है तो फिर प्रशासन नूं भी कार्रवाई करनी पै सकती है। इस तरह की गल करते नज़र आ रहे हैं दीप सिद्धू, लेकिन हजे भी इत्थे किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने रोष मुजाहरा कर रही ने, धरना दे रही ने, पुलिस जिहड़ी है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। आ मैं तुहानूं लाइव तस्वीरां इस वक्त दिखा रहा शंभू मोर्चे दीयां लाइव तस्वीरां ने जिथे लगातार कोशिश की जा रही है केंद्र ते दबाव बनाने की कि केंद्र जिहड़ा वो कानूनां दे विच किसानां दे मन मुताबिक सोध करदा नज़र आए। पुलिस इत्थे पुजी है, लाइव तस्वीरां दिखा रहा तुहानूं सीधे तौर ते जिहड़ा आ नैशनल हाईवे ब्लॉक किया गया उसनूं लैके हुण पुलिस नाल तकरार होंदी हुई नज़र आ रही है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ, ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਵਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਚਾਲੂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਰੱਖ ਦੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਆਸਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਟੰਟ ਆ ਇੱਕ, ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਲੇ ਪਵਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼।